Hello students and welcome to English class. Today we are going to read out a poem from the book English Literature book. The poem is given on page number 1 and the title of the poem is The Field Daisy. This poem is written by Anne Taylor. Do you remember when you were in nursery and prep class or KG class हम एक poem recite करते थे. That was Twinkle Twinkle Little Star. So the poem was written by Anne Taylor. है ना? So now let's start the reading of the poem. I am a pretty little thing, always coming with the spring. In the meadows green I am found, peeping just above the ground. And my stalk is covered flat with a white and yellow hat. Little Mary, when you pass lightly over the tender grass, skip about but do not tread on my bright but lowly head. For I always seem to say, surely winter's gone away. So students, in this poem, the white flower daisy is addressing us and it is saying that I am a pretty little thing. वो कह रहा है कि मैं एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी चीज़ हूँ. Always coming with a spring and I always bloom in a spring season. In the meadows green I am found, peeping just above the ground. In the meadows, what do you mean by meadows? Meadows means large field full of grass. बड़े बड़े जो मैदान होते हैं जो घास से भरे हुए होते हैं उन्हें हम meadows कहते हैं. Okay, so in the meadows green I am found, peeping just above the ground. The flower is saying कि मैं बड़े बड़े हरे भरे मैदानों में पाया जाता हूँ. एंड आई एम पीपिंग मीन्स झांकना. और मैं मैदान के बाहर निकल के मीन्स द फ्लावर इज पीपिंग above the ground. And my stalk is covered flat with a white and yellow head. और मेरा जो stalk है, stalk means stem. It is covered flat means it is flat and it is covered with what? White and yellow head. So and my stalk is covered flat with white and yellow head. So the flower is saying कि मेरा जो stalk means stem and it is covered with flat white and yellow head. White and yellow head is the petals of the flower. जो फ्लावर के जो पेटल्स हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो उसके जो पेटल्स एक तो वाइट कलर के हैं और उसमें जो बीच का जो पोर्शन है जो एरिया है दैट इज़ येलो. So the poet has given the term head to the petals of the flower. So the daisy is saying कि मेरे जो stems हैं वो white और yellow कलर की head से cover किए हुए हैं. Little Mary, when you pass lightly over the tender grass. So here the flower is addressing to the girl Mary. Mary जिस पिक्चर में जो लड़की है उसका नाम क्या है? Her name is Mary and it is saying that when you pass over the tender grass, O apostrophe ER इसका मतलब होता है over. Okay, so lightly over the tender grass. Tender means soft, नाजुक. फ्लावर बोल रहा है कि मैरी जब तुम सॉफ्ट ग्रास के ऊपर से चलकर जाती हो या गुजरती हो, skip about but do not tread on my bright but lowly head. So skip about means you don't put your foot on my head. Okay, I am bright. मेरा जो कलर है वो बहुत ब्राइट है बट मेरा जो हेड है मेरा जो सर है वो बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी है. लोली मीन्स सिंपल एंड ऑर्डिनरी. ओके, साधारण. तो मेरा जो कलर है मैं बहुत ब्राइट हूँ बट माई हेड इज़ वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी. सो द फ्लावर इज़ आस्किंग द गर्ल टू कि आप वहाँ से जब निकल रही हो फील्ड से जब पास आउट हो रही हो तो मेरे सर पर अपना पैर मत रखना वरना क्या हो जाएगा, मैं कुचला जाऊँगा. फॉर आई ऑलवेज सीम टू से श्योरली विंटर्स गॉन अवे. इट मीन्स द फ्लावर इज सेइंग कि व्हेन आई ब्लूम it is a sign that winter has gone away and the spring season has started. ओके, तो जब फ्लावर्स ब्लूम होते हैं और जब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं तो ये कहा जाता है कि स्प्रिंग सीजन है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन जो होता है
उसमें सब कुछ हरा भरा और बहुत ही कलरफुल हो जाता है। सो यर द फ्लावर इज सेइंग कि अगर मैं ब्लूम कर रहा हूँ तो मैं स्प्रिंग सीजन में ही ब्लूम कर रहा हूँ। तो इससे आपको ये संकेत मिल जाता है या आपको पता चल जाता है कि विंटर सीजन जो है वो तो चला गया है और स्प्रिंग सीजन आ गया है। सो अगेन लेट्स रिवाइज द पोएम। यहाँ पर जो डेजी फ्लावर है वो कह रहा है कि मैं एक बहुत सुंदर और प्यारा सा छोटी सी चीज़ हूँ और जो स्प्रिंग सीजन के साथ आता हूँ, मीन्स स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करता हूँ, मीन्स खिलता हूँ। इन द meadows green I am found peeping just above the ground। और मैं कहाँ पाया जाता हूँ? मैं हरे भरे मैदानों में पाया जाता हूँ और मेरे जो स्टेम हैं वो येलो और वाइट कलर की हेड से कवर किए गए हैं। और जो फ्लावर है वो जो लड़की उस मैदान से पास हो रही है उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे कह रहा है, इट इज़ एड्रेसिंग एंड आस्किंग द गर्ल टू पास केयरफुली फ्रॉम द ग्राउंड। उसको वो कह रहा है कि तुम बहुत ध्यान से मेरे पास से गुजरो, मेरे ऊपर अपना पैर मत रख देना वरना मैं कुचला जाऊंगा। सो और जब मैं खिलता हूँ आई ब्लूम इन अ सीजन ऑफ स्प्रिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग को ये समझना है कि विंटर सीजन जो है वो आ गया है, चला गया है और स्प्रिंग सीजन आ गया। सो दिस इज़ द पोएम स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन रिसाइट इट 2-3 times and you can underline the words, learn the spellings which are big spellings means difficult spellings जो हैं वो आपको याद करनी है और इसको पोएम को 2-3 times आपको लर्न करना है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू।